अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जाएंगे लास्ट वाला टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, दैट इज सैडल जॉइंट। जो सैडल जॉइंट होता है, ये जॉइंट क्या होता है, ये आर्टिकुलेटिंग बोन होती हैं। दो आर्टिकुलेटिंग बोन एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, जो ये दो आर्टिकुलेटिंग बोनस, दो बोनस हड्डियाँ जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। ये इस तरह से फिट होती हैं एक दूसरे के साथ, जिस तरह एक आदमी बैठा होगा एक जीन पर, जैसे वो घोड़े की जीन पर जैसे एक आदमी बैठा होता है, इसी तरह जो ये आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं ये भी एक दूसरे के साथ इसी तरह जुड़ जाती हैं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट सेडल है, इम्पॉर्टेंट जो इसमें ज़रूरी सेडल जॉइंट में क्या होता है कि हम इसको देखते हैं कहाँ पे, जो हमारी बेस ऑफ द थंब होती है। बेस ऑफ द थंब जो होता है वहाँ पे ये मौजूद होता है बिटवीन द ट्रेपीजियम ऑफ द रिस्ट। जो ट्रेपीजियम होता है रिस्ट का, और जो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन होती है वहाँ पे मौजूद होता है कौन सा वाला जॉइंट, सेडल जॉइंट। So I have written here like this: the articulating bones fit together like a man sitting on a saddle. Important saddle joint is at the base of the thumb between the trapezium of what, wrist, and the first carpal bone. So now your question would be, what are the movements which can be done at the saddle joint? कौन कौन सी मूवमेंट्स पॉसिबल होती हैं? एक तो होती है फ्लेक्शन, और होती है एक्सटेंशन, abduction, adduction and circumflexion. What are the movements? Flexion, extension, abduction, adduction and circumflexion. So I will now discuss about you in detail about all the movements which are shown by the synovial joint. First movement I will go in detail is flexion. What is actually flexion? Flexion means bending usually forward. जब हम बेंड करते हैं, जब हम झुक जाते हैं, कहाँ की ओर, फॉरवर्ड की ओर, आगे की ओर, तो उसको हम फ्लेक्शन कहते हैं. बट occasionally, at sudden, sometimes what we do, sometimes what we are doing the backward movement. We are doing what? We are doing backward movement. That movement is known as flexion. Flexion actually means bending usually forward but occasionally backward. Okay, and now the second movement is what? Abduction. Extension. What is extension? Extension means स्ट्रेटिंग और बेंडिंग ऑफ बैकवर्ड. जब हम पीछे की ओर, जब हम थोड़ा सा बेंड करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल्ड दैट टाइम इट इज एक्सटेंशन. एक्सटेंशन मीन्स व्हाट? स्ट्रेटिंग, स्ट्रेटिंग और बेंडिंग backward. When we will bend backward, direct in backward direction, we will call this movement is what? Extension. Another is abduction. Abduction means what? Movement away from the middle line of the body. Movement away from the middle of the body. वो वाली मूवमेंट जिसमें हम क्या करेंगे, हम अपने आप को क्या करेंगे, अपने आप को जो हमारी मिडिल लाइन होती है बॉडी के, उससे दूर हम चले जाएंगे. दैट वेरी मूवमेंट इज नोन एज व्हाट? एबडक्शन. movement away from the body is known as what? Away from middle line of the body, what we call this as? This is known as abduction. Another subheading is adduction. Adduction क्या होता है? Abduction, you know, when we will move away is called abduction. And adduction may be the opposite of this. That means movement, वो वाली movement towards, जब हम किसके ओर जाएंगे, मिडिल लाइन के ओर जाएंगे, तो
उस वाली मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? एडक्शन. ओके, मूवमेंट towards the middle line of the body is known as adduction. Okay, if you consider here, this is a body, this is a body, this is a person. तो जब हम मूव करेंगे away from it, what we call the daytime is adduction. When we will move towards this direction, then it is called as adduction. Okay, so next term is circumduction. What is circumduction? Circumduction means movement of a limb. एक मूवमेंट किसकी? लिम्ब की. यानी मूवमेंट मीन्स हरकत. एक हरकत किसकी? एक लिम्ब की. एक अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब, उसकी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? चाहे वो मूवमेंट होगी लिम्ब की या डिजिट की, सो दैट it will describe what? It will describe the shape of a cone. जो शेप होगी, जैसे कोन होता है, उसकी शेप ये डिस्क्राइब करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? सर्कमडक्शन. मूवमेंट ऑफ अ लिम्ब, चाहे अपर लिम्ब होगी या लोअर लिम्ब होगी या डिजिटल्स, सो दैट इट डिस्क्राइब्स, ये डिस्क्राइब करेगी, ये बन जाएगी शेप, कोन जैसी शेप ये बनाएगी अपने आप को, तो उसको क्या कहेंगे? सर्कमडक्शन. अनदर इज द रोटेशन. रोटेशन क्या होता है? रोटेशन मीन्स मूवमेंट राउंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन. वो वाली मूवमेंट, वो वाली हरकत जिसमें मूवमेंट होगी मगर किसके इर्द गिर्द? जो लॉन्ग एक्सिस होती है बोन की, वहां पे मूवमेंट होनी होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन. मूवमेंट राउंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन इज नोन एज व्हाट? रोटेशन. जब बड़ी वाली जो एक्सिस होगी एक हड्डी की, उसके इर्द गिर्द घूमने को हम क्या कहते हैं? रोटेशन. नेक्स्ट इज प्रोनेशन. नेक्स्ट इज व्हाट? विच मूवमेंट? प्रोनेशन. Pronation. What is pronation? Pronation means if you will take your hand, आप अपने हाथ को लेंगे, तो फिर आप क्या करोगे? टर्निंग द palm of the hand down. जब आपने हथेली, जो आपका हाथ है, उसकी जो हथेली होगी, उसको आप डाउनवर्ड्स में मूव करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? Pronation. Another is supination. What? Supination. Supination means turning the palm. जो आपका हथेली जो होती है आपके हाथ का, उसको क्या करेंगे आप? उसको आप अपवर्ड्स में मूव करोगे, तो उसको क्या कहते हैं? सुपाइनेशन. प्रोनेशन और सुपाइनेशन अपोजिट है. प्रोनेशन मीन्स when you will turn the palm of your hand downwards, नीचे की ओर जब आप अपने हाथ के हथेली को रखोगे, तो उसको प्रोनेशन कहते हैं. when you will do what? You will turn the palm of the hand up, उसको क्या कहोगे? उसको supination कहोगे. then there is inversion. What is inversion? How will describe inversion? Inversion means turning the sole of the foot inwards. जब आप टर्न करोगे, turning the sole of the foot inwards, अंदर की ओर ले जाओगे अपनी, जो आपको सोल होता है आपके फुट का या फीट का, यानी आपके पाँव का, उसको नीचे की ओर ले जाओगे, तो उसको क्या कहते हैं? इन्वर्शन. ओके. उसके बाद इसकी eversion, इसकी अपोजिट टर्म eversion. Eversion means when you will turning the sole of what?
फुट और फीट आउटवर्ड्स, जब आप अपने पाँवों के सोल जो होता है आपका, तो उसको क्या करोगे, ऊपर की ओर ले आओगे, ठीक है। इफ सपोज कंसिडर दिस इज अ फीट, फीट का जो जब आप इन्वर्शन डायरेक्शन करोगे तो उसमें आप फीट को अंदर की ओर खींचोगे, ठीक है। तो जब आपको इवर्शन करना होगा उसमें उसमें क्या करोगे, सोल को बाहर की आप क्या करोगे, रिफ्लेक्स करोगे, यानी कि बाहर की ओर दिखाओगे, तो उसको कहते हैं इवर्शन। सो दीज वर द मूवमेंट्स विच आर शोन बाय साइनोवियल joints. So I have discussed you with you the movements of synovial joint. First one I have discussed you with, that is flexion, extension, abduction, adduction, circumduction, rotation, pronation, supination, inversion and eversion, ठीक है। So hope you would have understood this part of lecture very well. Thank you for listening today's lecture. Have a good day.